Is it audible? Not much. Yes. Can't hear you properly. Now? No. No, you're very clear. I can hear you very Now we clear. are very clear. Yes, it is. Very clear. Ma'am, if possible, try to listen with headphones Okay. because your voice is very crystal clear. Okay. So last week we learned a very important meditation. I hope you all are practicing that. It's something which will help you to change your inner positioning and align yourself to the positivity, the harmony that we expect in our life. So अगर हम सोचने की कोशिश करें तो हम डे वन से एक अलाइनमेंट ही सीख रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अलाइन with all the positive things that we really want in life. So till date there is some disalignment and there is some disharmony with a lot of suppressed negative emotions in our system which create a block. तो आज हम ऐसे ही एक important emotion के ऊपर काम करने वाले हैं which blocks not only money but everything in life. And this emotion is guilt. Okay. Guilt, we say that there are, when we teach this basic cleansing process, so we say there are 5 negative blockages that block everything. One is fear, then is guilt, then is lack, then is anger, and the last is condensed sorrow. ऐसा दुख जो हमारे सिस्टम में लॉक हो चुका है किसी के गुजर जाने की वजह से, कोई रिलेशनशिप टूटने की वजह से या किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से. पर इन 5 इमोशंस में से सबसे खतरनाक है गिल्ट, क्योंकि बाकी के जो इमोशंस है ना वो किसी तरह से एक्सप्रेस होते हैं. आपको डर लगता है तो आप उन चीजों को अवॉइड करते हैं या यू टर्न टू क्विट फ्रॉम दैट और यू ट्राई टू फाइंड अ बेटर ऑप्शन व्हाट रिप्लेसेस दैट फियर. गुस्सा है तो वो वैसे ही एक्सप्रेस हो जाता है. डर है तो हम बता सकते हैं एटलीस्ट किसी को. कुछ पसंद नहीं आता है तो हम बता सकते हैं. फिर अपसेट ओवर समथिंग हम बता सकते हैं किसी को. गिल्ट इज समथिंग दैट we don't even confront it with ourselves. It is so intense in our system and it blocks us on many levels of life. अब आज हम जो गिल्ट की लिस्ट बनाएंगे इसमें शायद ऐसे गिल्ट्स होंगे जो आपको लगेगा इसका मेरे पैसे से क्या कनेक्शन है. कई बार गिल्ट का पैसे से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है, पर इन सारे नेगेटिव इमोशंस का आपसे कनेक्शन होता है. And till the time you are vibrating at guilt, how can you blossom at some other area in your life? Okay, हमने बचपन से एक ही चीज सीखी है कि अगर आप गलती करते हो तो आपको सजा मिलनी चाहिए. आपके अंदर अगर ऐसी कुछ गिल्ट है जो आपको खा रही है, so obviously you are unconsciously punishing yourself. Somebody who is under punishment will never experience expanse of life or any beauty of life. आप जिसको सजा दे रहे हो उसको आप खुश तो नहीं रखोगे ना कभी. सो आप ये जो गिल्ट है आपको नहीं पता, और ये कभी कभी ऐसे हम कारपेट के नीचे डाल देते हैं ना. जैसे अचानक से अगर गेस्ट आ गए घर में और थोड़ी डर्ट है या डस्ट है तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, उसको कारपेट के नीचे डाल देते हैं तो ऊपर से एकदम साफ सुथरा लगता है. तो कई बार we make peace with lot of things in life. We feel that we have come over a lot of things in life, but in reality ये चीजें हमें अंदर से खाते रहती है. मेरे पास एक बंदा आया था कंसल्टिंग के लिए and he was with us for many years and he knew all of this. So उसका प्रॉब्लम था कि वो 3 साल से he was into a government service and 3 साल से वो काम पे नहीं जा रहा था. So his sister, his brothers, they tried everything. They put him under psychiatric treatments. They took him to many counselors. And ultimately his sister called me and said that please talk to him. कुछ हो गया है उसको. 3 साल से उसने खुद को घर में बंद करके रखा है. So then when he came, I asked him कि क्या, I mean, हुआ क्या? So he said कुछ नहीं, पता नहीं, मेरे को बहुत डिप्रेशन है और मैं बहुत सारी दवाइयाँ खा रहा हूँ डिप्रेशन के लिए भी, but I don't feel like waking up. I don't feel like going anywhere.
So I don't know, when I saw him, I felt that, you know, he's as if punishing himself for something. So I asked him, ये जब हुआ 3 साल पहले क्या हुआ exactly? So he said ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं बोला उससे पहले कुछ हुआ. कई बार क्या होता है ना, कोई इंसिडेंट हो जाता है और इमीडिएटली हमें उसका इफेक्ट नहीं दिखता है. इट टेक्स टाइम फॉर योर बॉडी टू एक्यूमुलेट ओवर दैट. जैसे कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, यानी आपके साथ कोई कुछ बहुत बुरा हो गया घर में, यू नो, अचानक से किसी की डेथ हो गई, या ये कोविड के टाइम्स में भी जब था कि अचानक से घर में एक दो तीन एक के बाद एक पेशेंट्स हो रहे. देयर इज वन पर्सन हु इज सो स्ट्रांग, हु हैंडल्स द एंटायर शो, एंड पीपल फील कि माय गॉड, दिस पर्सन, दिस लेडी इज सो स्ट्रांग, आई मीन इसको कुछ दुख नहीं है, दर्द नहीं है. देयर इज वन पर्सन हु इज ऑलवेज देयर, यू नो, हु इज हैंडलिंग द होल स्ट्रेस. दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्फ. एंड जब सब खत्म हो जाता है, यू नो, द होल थिंग पासेस अवे, उनको थोड़े दिनों बाद फिर इंसोम्निया स्टार्ट होता है, एंजाइटी स्टार्ट होती है. उनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली जब स्ट्रेस था तब मुझे कुछ नहीं हो रहा था, आई वाज सो नॉर्मल, आई हैंडल्ड एवरीथिंग, एंड अचानक से ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. वो टाइम के कुछ दर्दनाक यादों के फ्लैशेस स्टार्ट होते हैं. उस टाइम कुछ नहीं हुआ, दे सो इजीली जस्ट पुल्ड द होल थिंग. उनके वजह से सो मेनी पीपल स्टूड अप. सो एट टाइम्स दिस हैपेंस कि इमीडिएटली कोई इंसिडेंट होगा, उसका इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं. कई बार बहुत लेट भी इफेक्ट्स दिखाई देते हैं. सो आई आस्क्ड हिम कि उसके पहले कुछ हुआ था 1-2-3 महीने पहले. सो ही सेड नहीं, 6 महीने पहले माय मॉम पास्ड अवे. So I asked him, were you very attached? Because they both were only staying. He was 37, but still not married and all. So obviously there's going to be a very big attachment. So I said, were you very attached? Are you missing her? I mean, is this sudden loneliness that is there in your life? What is it? So he didn't talk for a very long time. Then I asked, do you feel guilty for something? Then he said, actually, मैं जब घर में आया रात को बिफोर द डे माय मॉम पास, सो आई वाज आउट ऑन अ पार्टी, और कुछ बहुत बड़ी मेरी डील हो गई थी. यूज इन गवर्नमेंट, सो ऑब्वियसली अंडर टेबल मनी आता है, एंड इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो ही हैड क्रैक्ड अ वेरी बिग डील एंड ही वाज वेरी हैप्पी, एंड सो ही वाज आउट विद फ्रेंड्स पार्टिंग, एंड ही वाज स्लाइटली ड्रंक एंड ही वाज हाई व्हेन ही केम होम. सो हिज मॉम वाज टेलिंग कि आई फील वेरी रेस्टलेस ना, मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा है, थोड़ा चेस्ट बर्न हो रहा है. So he thought, even she thought that probably it is acidity because she had some chronic acidity type problems. And so he just gave her an antacid and told her that we will go in the morning. But she twice called him, you know, by his name in the night and told him that we'll go to the doctor. And he was like, नहीं, फिर उसने इनो दिया, कुछ दिया वो suppress करने के लिए. And when he woke up in the morning, his mom had passed away. And that guilt that he was carrying, and he said, I have not shared this with anybody. Neither my sister knows this, not brother knows this, that before passing away, she spoke to me, or, you know, she told me that I'm restless and I feel a bit uneasy and, you know, you should take me. And that guilt just locked him up. 3 years, that man was punishing himself. He just locked himself in the room. And he was not going for work. He had some marriage proposals. He rejected all of them. He was not seeing anybody. He used to just have a pill, sleeping pill, and sleep the whole day. That's all that he was doing. It took a long time for him to get over this guilt, to learn to forgive himself. It took a very long time. But this is how guilt just blocks us. It stops us from experiencing any good things happening around us. और कई बार ये गिल्ट बहुत छोटा छोटा भी होता है कि मैंने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, मैंने उस टाइम पे जॉब नहीं किया, मैंने उस टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया. सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमें खाती रहती है. और कई बार हमें लगता है कि कुछ बहुत बड़ा नहीं है. आई सडनली फील अपसेट विथ माई सेल्फ एंड आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज. देयर इज नथिंग वेरी बिग प्रॉब्लम हैपनिंग इन माई लाइफ, बट दिस deep within that is suppressed inside us, this keeps eating us. So we need to get rid of this. Now, from the angle of Mani Upasana, when we are going to address guilt, there are 2 types of guilt. One is a conditional guilt, which revolves around money and life, and the other is a situational guilt. Conditional guilt क्या है कि जैसे if you are born and brought up in a very बहुत आध्यात्मिक वातावरण है बचपन से घर में, या बहुत स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, या थोड़े से सिंपल लाइफ रही है आपकी, सिंपल अपब्रिंगिंग रहा है,
सो एक फीड हमेशा रहती है ना मिडिल क्लास घरों में कि बहुत पैसे के पीछे मत भागो. सो आज जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा कुछ बड़ा हो जाए लाइफ में, थोड़ी लग्जरी एक्सपीरियंस करे, थोड़ा मजा आए लाइफ में, तो एक डीप गिल्ट शुरू हो जाता है कि अ, सही है क्या ये. लॉजिकली हमें सब समझता है कि ये सही है, बट एक डीप गिल्ट कंडीशनिंग जो हमारा है कि बहुत पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो लोग, और बचपन से इफ यू सी हमें ये दिखाया गया है कि जो लोग बहुत पैसे के पीछे भागते हैं उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ स्कैंडल्स होते हैं उनके लाइफ में, नोबडी लाइक्स देम, पीपल, लोग उन पे जलते हैं, एंड कैसे हेल्थ इश्यूज है उनके. सो ये बचपन से हमें दिखाया गया है कि ये देखो, और वी हैव बीन शोन स्टोरीज ऑफ फेलियर्स आल्सो कि ये देखो ये कैसे उड़ने गए और गिर गए. हमें ये बहुत कम दिखाया जाता है. सो वी आर प्रोग्राम्ड टू बिलीव दैट though we all want money, consciously we all want money, we all want a very good life, but deep within there is a deep guilt of even having money, experiencing money. That is why there are a lot of doctors also जो लोग money उपासना करते हैं. So they're very confused. They're like कि obviously we want more practice, we want more money, but then they say that we feel guilty that we are tapping कि हमारी practice बढ़ जाए. तो इसका मतलब ये है क्या हम expect करें कि लोग बीमार पड़े. So that is a guilt behind that also. So it's not like that. लोग वैसे भी बीमार पड़ रहे हैं, वो दूसरी जगह जाने से अच्छा है हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे पास आए. इतना ही हो रहा है बस. That is what we are trying to navigate through guilt. So these conditional guilts are also very deep and very intense. A lot of women have a lot of guilt about if they're working, they have a lot of guilt that they're not giving equivalent time to their children. And we try to manage that guilt, कि आप उसको थोड़ा सा सरपास करने की कोशिश करोगे, थोड़ा कॉम्पनसेट करने की कोशिश करोगे, बट डीप विद इन देयर इज अ गिल्ट दैट माय किड्स डोंट हैव माय टाइम, तो ये बिगड़ जाएंगे, इनको बाद में कैसे ये होगा, दे विल नॉट बी अटैच्ड टू मी. इन रियलिटी अगर आप एक्चुअली में सोचो तो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया होगा ना. हमें रोज गार्डन लेके जाते होंगे, या हमें रोज कितनी सारी जगहों पे लेके जाते होंगे बाय सैक्रिफाइसिंग देयर ओन लाइफ. हमें उनमें से कितना याद है? शायद हर एक चीज की एक एक मेमोरी हमें याद है बस. सो बच्चों को आप कितना भी कुछ भी कर लो उनके लिए, उनको याद कुछ भी रहने नहीं वाला है. फर्स्ट थिंग, ओके, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ मच टाइम यू स्पेंड इज नॉट इम्पोर्टेंट. What is your bond with your child is very important. Even if you give your child 15 minutes in a day, how intense are those 15 minutes? Are you a taskmaster in those 15 minutes, or are you a friend in those 15 minutes? This is going to build your relationship for the whole life. There are so many women who opt to not do a job or not do anything because they want to take care of their kids. और फिर वो गिल्ट उन्हें खाता रहता है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं आई एम वेस्टिंग माई लाइफ, एंड आई एम पुटिंग माई सेल्फ इनटू सच एन अनप्रोडक्टिव पर्पस और समथिंग विच इज नॉट रिवॉर्डिंग. नाउ व्हेन यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट गिल्ट एक प्लस फ्रीक्वेंसी है या माइनस फ्रीक्वेंसी है? इट्स अ माइनस फ्रीक्वेंसी. And it's the most dangerous thing. It's the most dangerous thing because you cannot express guilt. आप guilt को कैसे express करोगे? How will you vent out guilt? आप सॉरी बोल दोगे किसी को, पर कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती है जो टाइम निकल चुका है. अब सॉरी बोलने से, या you can't even make up for that loss. That is why guilt is so deep, so intense. And when you start releasing guilt, first thing that you will experience is happiness. Without a reason, happiness. Acceptance. Without a reason, you will feel accepted. We feel guilty for so many things. The way we look, the way what we eat, there is always guilt in it. कि क्या खा रहे यार, सही खा रहे कि नहीं पता नहीं, ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया. Always हम constantly एक ऐसे फ्रेम में कि ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. और जो लोग खुद को अपग्रेड करने के पीछे भी लगते, कितना अपग्रेड करोगे खुद को? हमें दुनिया का सब कुछ कभी पता हो ही नहीं सकता है. There's always somebody going to be better than you in some way, always in life.
So the whole point is we have to first get out of this guilt, क्योंकि गिल्ट हम चाहते हैं कि दुनिया हमें रिस्पेक्ट करे, लोग हमें अच्छे से रिलेट करे हमसे, पर हम खुद को क्या दे रहे हैं? हम खुद को गिल्ट में रख रहे हैं। गिल्ट इज अ पनिशिंग इमोशन। हम जब चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, you cannot expect respect, because the body with which you are expecting respect, you yourself every day are nurturing guilt in it. ये दो contradictory emotions एक साथ नहीं चल सकते। okay, so today आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंडीशनल गिल्ट्स क्या है आपके, जो बचपन से लेके आज तक आपने सुने हैं। बहुत लोगों का ये कंडीशन रहता है कि सब कुछ लाइफ में अच्छा नहीं होता है, तो एक कोई कॉर्नर लाइफ का हमेशा खराब लंगड़ा रहता ही है। मेरे को एक आदमी ने ऐसे बताया था, and he came to me and he was like he had a very difficult situation with his wife, and on contrary he had a very difficult situation in the business also. So I was going back to his relationship issue and he was like कि मैम मैं उसके लिए ना सेपरेट अपॉइंटमेंट लेता हूँ, पर आप ये पैसे का पहले सॉल्व करो। मैं बोला ठीक है करेंगे वैसे, पर मुझे क्यूरियोसिटी है कि आप उस टॉपिक को डॉज क्यों कर रहे हो बार बार। हम एक ही मीटिंग में दोनों भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं ना। सो ही वाज लाइक ऐसा थोड़ी होता है कि सबकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चलता है, कुछ ना कुछ तो इम्परफेक्शन रहता ही है ना। आर यू फियरफुल दैट इफ रिलेशनशिप यू बिलीव दिस कि लाइफ का कोई कोना लंगड़ा रहता ही है। सो अगर रिलेशनशिप ठीक हो गया तो पैसे का प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। अगर पैसे ठीक हो गए रिलेशनशिप चल सकता है, क्योंकि वैसे भी इतने सालों से चला ही रहे हम लोग उसको। सो दीज आर very difficult conditionings that will always pull you back. There was a person who was doing Mani Upasana for 4 years and I saw him for the 4th year and I knew that nothing is happening in his life. So I was like कि why are you coming again and again? So he was like नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला ट्रांस ट्रिप is not the purpose of Mani Upasana कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो ये कोई आप ट्रांस का म्यूजिक लगा दो, मेडिटेशन करो तो भी आपको अच्छा लग जाएगा ना, क्योंकि if अच्छा लगना is the purpose. I said there has to be some growth in your life, कुछ shift होनी चाहिए। So आप एक काम करो, आप पहले मनी उपासना एनरोल करने से पहले आप एक अपॉइंटमेंट ले लो। फर्स्ट लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट योर होल स्टोरी इज एंड व्हाई आर यू स्टक फॉर सो मेनी इयर्स। ही इज अ प्रोफेसर बाय द वे। एंड देन ही केम एंड देन ही वाज लाइक कि आई सेड यू डोंट एक्सपेक्ट अ ग्रोथ। आई सेड हाँ मुझे चाहिए ना, मुझे ग्रोथ चाहिए। तो मैंने कहा क्या ब्रैकेट है आपका, आपको क्या लगता है कि मैं हाउ मच मनी एम आई वर्थ of earning in life? That time he was stuck somewhere around 20-25,000, that's all that he was making. And he said नहीं मुझे ऐसे लगता है कि एटलीस्ट एक 40 तक तो जाना चाहिए। तो मैंने बोला क्या होगा अगर 40 से आगे गया तो? सो ही सेड पता नहीं क्या होगा, पर पहला तो होगा ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि प्रोफेसर को इतना पेमेंट मिलता नहीं। मैं बोला आप प्रोफेसर ही छोड़ दो, मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर 40 से आगे आपको पर मंथ पैसे मिले तो क्या होगा? सो ही सेड अच्छा होगा। आई सेड वो अच्छे में कोई अच्छी वाली फीलिंग ही नहीं है, क्या नेगेटिव होगा? मुझे आप बताओ क्या नेगेटिव होगा? His first answer was that I will be away from spirituality. I said who said this, who told you this? So he said, I said, why you feel this? He said, no, because then more money, then the college will make me work more. Then I will obviously be not be able to spend time on the spiritual activities that I do. I said, why do you do so many spiritual activities? He said, no, we should, na, because we carry so many karmas. And I said, you're doing the spiritual activities and day in, day out, you're thinking कि भाई मेरा life कब settle होगा? तो उस spiritual activity में राम कहाँ है? उसकी आत्मा ही नहीं है। आप दिन भर वो कर रहे हो whatever you're doing. And he was related to an organization, a very famous organization in Maharashtra. And then I asked him, I said, if you read their original philosophy, which has been there, the original version of it, I said उसमें पैसे को लेकर कोई कंडीशनिंग ही नहीं है। ये आपको जो सिखा रहा है ना, उसने आपको ये कंडीशनिंग किया है। See, why do these spiritual organizations since a very long time
don't allow us to explore money. We are always conditioned कि ये माया है, ये माया है, ये माया है. क्यों माया है? पैसे के ऊपर तो सब कुछ चलता है. कोई any big worshipped temple in India or anywhere in the world is not poor. It's full of prosperity. उस मूर्ति के सर से लेके पांव तक शायद हर चीज सोने की होगी. There is so much display of wealth. There is so much prosperity being displayed. Even into our traditional scriptures, no god except Shiva is shown to be, in a very normal state or in a very deprived state. Nobody. They depict so much of wealth and so much of prosperity. So this is why, because and आप अगर देखोगे ना, ये सारे limitations और conditionings है ना मिडिल क्लास लोगों के लिए. मिडिल क्लास के नीचे का जो क्लास है ना, वो तो इसमें ही बिजी है. हैंड टू माउथ इज देयर होल फाइट द होल डे. जो मिडिल क्लास से अपर क्लास है, दे आर एनकरेज्ड टू हैव वेल्थ बिकॉज दीज आर द वेल्थ कॉर्नर्स एंड दीज आर वेयर पीपल रिसीव डोनेशंस एंड दिस इज हाउ द होल गेम हैपेंस. The whole middle class or a bit of upper middle class is conditioned with so much of spiritual and religious restrictions कि ज्यादा पैसे के पीछे मत. हाँ, obsession of money, पैसे को छोड़ के कुछ भी नहीं सूझना गलत है. But एक basic आस होना कि भाई I am educated into this field and I expect a rise, a certain increment every year, an upgradation in my lifestyle, 2 cars, maybe 3, maybe 2-3 houses. ये क्यों गलत है? Because if we become, money brings a lot of independence. Money brings power. And if you are powerful, why will you go to these spiritual organizations? Because you feel so complete in yourself. And then when you stop going to these spiritual organizations, इनकी workforce कहाँ से बनेगी? And that is why we are all conditioned with so much of belief systems. This is all blocking us. हमें नहीं समझ में आता है कि इसका डायरेक्ट क्या रिलेशन है. ये सब एक अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो हमारे सिस्टम में बहुत डीप चलता है. If love is an energy which is so pure and so abundant, money is also an energy which has to be so pure and so abundant. But money has so much of weightage. The weightage of fear, the weightage of guilt, the weightage of loss, everything. It's so heavy, we cannot relate to it very easily. So guilt एक ऐसा emotion है जो हमें हमेशा पीछे खींचेगा और आपको कभी ये समझ में भी नहीं आएगा. You will not believe when I told him that ठीक है, all respect to your conditionings or whatever you respect, okay, that's none of my business, it's your faith. But I am telling you that no religion in the world or no theory in the world will stop you from becoming powerful or becoming empowered. So with this understanding, tap on this block and this guilt of yours. And within 4 weeks, he got a placement from a private institution in Pune. And I told, and he was so into so many restrictions कि नहीं होता है, education field sector में jobs है ही नहीं. मैं बोला यार पुणे में कितने institutes है, हमें एक सीट चाहिए यार, एक, 10 भी नहीं चाहिए, एक चाहिए. एक ढंग की नौकरी हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? क्योंकि बहुत बड़ी बात है 40,000. No, you will not believe the next pay that he took was 42. And this, he was flabbergasted. He didn't know what to do. And is this really happening with him? So we don't understand हम कहाँ से खुद को कैसे block करके रखते हैं. But if we can get free from guilt, a lot of things that are blocking our life will start just enrolling. So we need to identify कि what are our conditional guilts. कंडीशनल गिल्ट यानी ऐसा कि जो बचपन से सीखा है, सुना है हमने कि नहीं, बहुत पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बहुत ये नहीं करना चाहिए, लोगों से पैसे नहीं मांगने चाहिए, लोग बुरा समझते, लोग छोड़ के चले जाएंगे, हमेशा खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, किसी और को हमेशा इंपॉर्टेंस पहले देना चाहिए. दीज आर ऑल कंडीशनल गिल्ट्स. एंड देन वी कम टू सिचुएशनल गिल्ट्स. सिचुएशनल गिल्ट्स यानी किसी सिचुएशन की वजह से क्रिएट हुई है कि आपने
कोई गलत इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लिया एंड यू फील एवरी डे इन डे आउट इट पिंचेस यू कि मैंने ऐसे कैसे किया. कई बार द अमाउंट डजंट मैटर बट दिस फीलिंग दैट हाउ डिड आई डू दिस, यानी ऐसी गलती मुझसे कैसे हो सकती है, दिस पिंचेस अस वे मोर. We have a guilt that we did not pursue anything in life. हमने कोई डिग्री कंप्लीट नहीं की या कुछ एजुकेशन इनकम्प्लीट रह गया हमारा, कुछ हमें नहीं आता है जो हमारे बिजनेस के लिए या किसी चीज के लिए आना चाहिए. We have a lot of guilt related to a lot of duties in our life कि माँ बाप का जैसे ख्याल रखना चाहिए था नहीं रख पाए, बच्चों को जो देना चाहिए था नहीं दे पाए, खुद के हेल्थ को लेकर जो जितना डेडिकेटेड होना चाहिए था उस समय नहीं हो पाए. So there is a lot of guilt that runs in our system. We need to free ourselves from this guilt. गिल्ट में रहा हुआ इंसान कभी फ्लरिश नहीं कर सकता है लाइफ में. जैसे आप किसी पेड़ को रोज पानी दे रहे हो, उसको रोज खाद भी डाल रहे हो, पर उसको पानी देते वक्त आप रोज ये सोचते हो कि ये मरेगा शायद. You're not doing anything else, but you want it to grow actually, but उसको पानी देते वक्त आप रोज उसकी तरफ देख के बोलते हो ये मरेगा शायद, ये नहीं आएगा. What do you think what will happen? Plants are very sensitive to the environment that is around them, and this is proven with thousands of experiments. They even show a graphical inclination. There was a doctor called Cleve Baxter. So this is there on YouTube or on the net. Cleve Baxter, he was a biologist. He was a botanist and a biologist. So he was trying to, calibrate the rhythm of the plant. कि हमारे अंदर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिदम्स कैलिब्रेट होते हैं ना, जैसे हार्ट का ECG आता है, ब्रेन का EEG आता है. So this is because they are electromagnetic waves that these machines sense. So he was trying to calibrate that. So he had hooked those devices to the plant, and he was the normal rhythm plant का जैसे होगा वैसे चल रहा था. And he tried to curse the plant. He tried to create a lot of negative influence around the plant, which was artificial. Okay, कि जैसे आपको अगर मैंने बोला कि मुझे गाली दो, आपको मन से नहीं है, पर मैंने बोला आपको कि चलो एक्सरसाइज है, मुझे गाली दो, तो ये मन से निकलेगी या ये ऐसे ही फैब्रिकेटेड निकलेगी? फैब्रिकेटेड निकलेगी ना, क्योंकि एक्सरसाइज है, मैंने बोला आपको कि अभी गाली दो. पर आपको सही में मुझ पर बहुत गुस्सा आया है, तब जो गाली निकलेगी उसकी इंटेंसिटी ऑनेस्ट होगी कि नहीं, ज्यादा होगी उस हिसाब से. तो ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं चल रहे हैं. आई मीन ही वाज रिसर्चिंग ऑन हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इमोशंस एंड ऑल दैट. सो वो फिर थक गया और उसने एक गरम कॉफी का मग लिया और वो उस प्लांट के सामने कॉफी पीते बैठ रहा था. और ऐसे ही कॉफी पीते पीते उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैंने इस प्लांट के पत्ते को अगर इस कॉफी हॉट बर्निंग कॉफी में डुबा दिया तो क्या होगा. ये उसके मन में चल रहा है. He just thought of it and he got up to actually do it, and the whole graph shifted. It was so hyper, as if the plant was having a heart attack. And then he called his partner to tell him that something like this has happened, and the plant responded to my thought. So his partner he said, you're crazy. So his partner came and then he said, show me. So Cleve Baxter again tried to repeat the same thing. He sat in front of the plant with a hot coffee mug in his hand, and he said ki abhi main I'm going to dip you in the hot coffee. There was no reaction. Same normal rhythm chal raha tha. Now this Cleve Baxter fell on his face. So he got so angry and he said, abhi main isko tod hi deta hu. And the whole graph shifted. So this experiment proved to the world that these polygraphs also, plants which are considered to be of a lower vibration bandwidth than the human beings, respond to human emotions. In the same way, our every cell responds to every honest emotion that gets created. आप गिल्ट को
सरफेस से कवर कर रहे हो कि ठीक है, हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, अभी जाने दो, इट्स टाइम, छोड़ दो, छोड़ दो. दिस इज अ सरफेस कवर अप, क्योंकि लाइफ आगे चलती है. बट डीप विद इन you believe that you are guilty for something. What do you think? Your cells will respond to your honest emotion, or your cells will respond to a fabricated cover up that you have created? They will respond to your very, very honest emotion. And this is how psychological disorders get placed in the body. And that is why today everybody comes to a conclusion saying that 99% diseases in the human body are because of the psyche. And what psyche? This kind of psychology which gets suppressed. क्योंकि guilt हम रोज चलते फिरते तो नहीं, हम क्या करते हैं? To get out of this guilt, what do? You try to compensate, right? But that doesn't relieve you from that. So if you want to blossom in all areas of your life, you have to be free from guilt. You have to learn to accept yourself despite of whatsoever the situation happened in your life, is happening, will happen. Whatever happened in the past. कोई भी conditional guilt हो जिसको आप लांघने की कोशिश कर रहे हो, आप उस ब्रैकेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि ये सही है. बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ, ये सही है, ये गलत है. ये आपका कॉन्शियस बताएगा आपको कि आपने कितना चार्ज करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए. आप जितने क्लियर रहोगे हमेशा पैसे से लेकर या हर चीज से लेकर, द मोर इजियर एंड द मोर सॉर्टेड लाइफ विल स्टार्ट हैपनिंग टू यू. So take 10 minutes and make a list of at least 6 to 7 guilts that you are carrying in your system. It could be conditional guilts. I have allowed you to unmute yourself. So आपके अगर कोई सवाल है तो आप unmute कर सकते हो खुद को. So आप at least 6-7 guilts ढूंढना. कई बार ये guilt बहुत deep भी होता है. जैसे if somebody experiences a lot of molestation as a child, a lot of abuse as a child, they start hating their body and they feel very guilty that, you know, because I'm a girl, I have to go through all this. And this is not only with girls, okay? Over the years, I have met so many people, men also, if they are slightly weak, if they are slightly vulnerable, they also have undergone abuse histories. But today women are more open. You have a platform to speak, so you can. Many a times men don't have a platform to speak, and we don't even believe कि भाई ऐसा होगा कभी, but होता है. And that blocks you on all levels. You start hating your femininity. You start hating your body. अभी आपको जो भी करना है लाइफ में, ओके, आपको जो सक्सेस चाहिए वो इस बॉडी के साथ ही चाहिए ना. और इस बॉडी से जब रिलेट कर रहे हो तो इतनी हेट है, इतनी घृणा है, इतनी शेम है कि गंदा लगता है कि वो गॉड, मैंने ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ. इतना गंदा लगता है खुद को लेकर. ग्रोथ कैसे होगी लाइफ में फिर. सो इट कुड बी वेरी डीप, वेरी डार्क गिल्ट्स ऑल्सो. People have a lot of guilt related to their sexuality, their sexual orientations. ये सही है, ये गलत है. It's a very, very natural process. And it's a lot of conditioning also कि हम जिस religion से आते हैं, जो घर में practices का माहौल है, वो भी बहुत सारा guilt हम पे create करता है. So identify at least 6 to 7 of these kind of guilts. Okay, आपसे कोई गलती हुई होगी, आपने किसी को कुछ एडवाइस दिया कभी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वो डूब गया या कुछ हो गया ऐसा. That is also a very heavy thing. We reject it at times on the surface level कि उसको भी समझना चाहिए था ना, मैंने थोड़ी जानबूझ के किया. But it eats you within. It starts blocking you. आपको नहीं समझता है कैसे, but it blocks you. कुछ भी अभी आगे करने से पहले आप डरोगे. आप किसी से बात करने से पहले भी हमेशा सोचोगे. You will be so cautious. So all this will unknowingly start clinging over you. Yes, Vineet, बोलिए. मैम आपने जैसे बोला ना कि मनी को लेके इट शुड बी क्लियर, देन योर लाइफ विल बी. तो मैं वो पार्ट समझा नहीं. हाउ, मतलब क्या क्लियर होना चाहिए. बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती पैसे की.
ओके कि पैसे मांगने चाहिए नहीं मांगने चाहिए, क्या करना चाहिए पैसे को लेकर, कितने पैसे मांगना सही है। बहुत लोग जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उनको कभी ये इक्वेशन समझ, पीपल हु आर नॉट कल्चर्ड इनटू द कल्चर ऑफ मनी, ओके, उनको ये बहुत गिल्ट रहता है कि मेरे को अभी somebody is offering a say an intellectual service, ओके, कोई इंटेलेक्चुअल सर्विस दे रहा है, अभी कोई गुड्स का एक्सचेंज तो है नहीं इसमें। Right. तो ऐसे लोगों को बहुत गिल्टी लगता है कई बार कि मैं मेरे इतने फीस चार्ज कर सकती हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या। देर आर सो मेनी थेरेपिस्ट यू नो विल कम टू मी एंड दे विल से कि कैसे करने का इतना चार्ज, अरे कैसे करने का यानी ये आपने डिसाइड करना है कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है। True. True. It's your inner feeling, because we are conditioned with so much of guilt and unclarity about the whole money game, because we considered money to be something bad, है ना, पैसा बहुत बुरा है। आप सोचो, आपके पास एक आदमी आया काम करने के लिए, तो वो बेचारा कारपेंटर है और उसने दो आते हैं, सपोज हम एग्जांपल लेंगे, और एक आता है, एक आपको बोलता है कि आप उसको पूछते हो कितना हुआ, वो बोलते हैं ठीक है आपको जो सही लगता है दे दो, ओके। और दूसरा आता है जो काम हाथ में लेने से पहले ही आपको बोलता है कि काम हो ना हो मेरे विजिट के 200 रुपए तो बनते हैं, ओके, फिर उसके बाद काम के अलग। आप किसको काम दोगे? आप शायद किसको काम सेकंड, दोगे? हाँ, मैं दूंगा सेकंड वाले को। हाँ, क्योंकि आप शाह हो ना। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होगा ना। वी हाँ. फील वी आर इन ऑ विद पीपल जो पैसे नहीं लेते, ओके। True. ही इज स्टूपिड एक्चुअली। उससे इफ ही डजंट नो टू वैल्यू हिज वर्क, ही इज स्टूपिड। पर हम कहेंगे कि भाई ही इज गॉड सेंट, इसे पैसे की लालच नहीं है, इसे पैसे की लालच नहीं, इसे पैसे की समझ नहीं है। So there are these kind of very confused people because they don't come from the culture of money. Right. Money is a culture, जी. है ना? विनीत आपको तो पता होगा, you know that. मैम इसमें मुझे एक और थोड़ा ऐड करना था, जैसे आपने बोला ना, मेरे साथ जनरली क्या होता है कि अभी मुझे पता है कि मेरे को कितना मांगना है उससे, व्हाट आई हैव टू चार्ज, बट क्या होता है अगर मैं अपफ्रंटली बोलूंगा तो काफी लोग ऐसे होते हैं कि मुझे पता है ये नहीं देगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गो गेटर टाइप होते हैं, तो वो अपने को देख के समझ में आता है इसको पहले अमाउंट क्लियर किया, प्रपोजल पहले भेज दिया, कोटेशन भेज दिया तो पेमेंट फटाफट रिलीज होगी। और कुछ ऐसे होते हैं अगर मैंने पहले अमाउंट बोल दिया तो आदमी गायब हो जाएगा, आएगा ही नहीं। सो काफी टाइम, जैसे अभी आपने 2 एग्जांपल बोले ना, तो मैं भी जनरली मेरे क्लाइंट को ऐसे ट्रीट करता हूँ। जैसे अभी मुझे देख के उसको ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा उस काइंड ऑफ बंदा है कि इसको मैंने अपफ्रंट बोल दिया कि ये फीस लगेगी तो ये नहीं देख करेगा काम, तो हम बोलते हैं कि नहीं अब पहले काम स्टार्ट करते फिर देखते हैं क्या है, क्या चार्ज लगेगा, क्या होगा। That's your strategy to manage, okay? So normally see people tell me that there are people कि मैं बहुत क्वालिटी काम करता हूँ या मैं बहुत क्वालिटी काम करती हूँ, पर सामने वाले का बजट इतना कम है तो मुझे काम नहीं मिलता है, सामने वाले को काम मिल जाता है। ऐसे प्रोसेस में आप 2 प्रपोजल्स रखो ना, एक प्रपोजल पूरे क्वालिटी के साथ रखो और उसको बोलो कि अगर पूरा क्वालिटी ये चाहिए तो ये मिलेगा, ये कम चाहिए तो ये मिलेगा, तो आप 2 प्रपोजल्स रखो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली चूज करता है। बट बिकॉज वी आर सो कंफ्यूज्ड, हमें नहीं समझ में आता है कि सामने वाले को कैसे टैकल करना है या पैसे से रिलेटेड रिस्पॉन्स भी कैसे देना है, हमें कई बार समझ में नहीं आता है। सो वी फील कि क्या यार मैं इतना क्वालिटी काम करके भी मेरे को क्लाइंट नहीं आता है, बट देयर इज अ वे टू हैंडल अ क्लाइंट आल्सो, राइट? सो यू नीड टू डेवलप ऑल दिस। ठीक है, अंडरस्टैंड। Yes. So with guilt now identify कुछ पुराना डूबा हुआ पैसा, तब घर करना चाहिए था, तब ये करना चाहिए था, तब इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए थे, तब मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए थी। ऐसा बहुत कुछ होता है। So think of the conditional guilts also, personal guilts also, and related to money, what is happening also. कई बार लोगों को खुद का पैसा मांगने में भी बहुत गिल्टी लगता है, उन्हें लगता है कि क्या सोचेगा सामने वाला, आपने तो दे दिया हेल्प करने के इससे, पर अब जब रिटर्न करने की बारी आ रही है आप देख रहे हो कि सामने वाले का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, वो घूम रहा है सब जगह पे पर आपके पैसे नहीं दे रहा है। और मैंने ये इतने सालों से एक्सपीरियंस किया है ना, लोगों के पास पैसे नहीं है ये सबसे बड़ा झूठ है, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हो ये सबसे बड़ा सच है। यू आर नॉट देयर प्रायोरिटी। If you are their priority, they will make arrangement from somewhere and give it to you. So
Very rarely a section of a society is real कि इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है. But maximum of us, see, even we have a habit to say ना कि नहीं है पैसा. आपको अगर अचानक से किसी ने बोल दिया कि आपके पास पैसा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कितना होना चाहिए ये भी हमें नहीं पता, किसको ज्यादा बोलते हैं ये भी हमें नहीं पता. So even we don't know कि अभी सामने वाला बोलने क्या वाला है. So we also are always in denial of money. इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला पूछे तो आपको हाँ बोलना है और दे ही देना है, नहीं. बट इंटरनली ऑल्सो वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिनायल ना. आपके पास सब कुछ होने के बाद कितनी बार ऐसा होता है कि आपको सही में लगता है कि बस यार मस्त है लाइफ, लाइफ इज वेरी गुड एंड आई वांटेड टू गो विद दिस पेस, आई वांटेड टू गो विद दिस पेस एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल. नहीं, हमें डर लगता है कि मैंने ऐसे बोल दिया और किसी की नजर लग गई तो कल से तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ. So we are always in that denial mode ki nahi, 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 it's not sufficient, it's not sufficient. Not sufficient will create more of insufficiency in life. So from all these three fronts, identify two guilds. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन लाइफ, तो ये भी बहुत गिल्ट होता है, बहुत लेट स्टार्ट किया. Done? Yes? Should we start with the tapping? Ma'am, 1 minute. Yes. Should I wait 1 more minute? Yes, ma'am. Okay. अभी हमारा अगला सेशन होगा 12th को, which is next Thursday. Okay, then we have a gap because I am traveling, and then we will have the session on the 26th. Okay, so अगला सेशन जो होगा वो बड़ा होगा, उसमें सर का और मेरे दोनों के सेशंस होंगे और प्रोटोकॉल भी उसी में होगा. चलो, let's start. Start tapping. Close your eyes. Don't get too attached to the protocol. Just tap it with an understanding that you are cleaning something which could be blocking you in life.
मुझे जैसी लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, जितनी ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इनर पीस, कंटेंटमेंट मैं चाहती हूं, वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूं, क्योंकि मेरे सिस्टम में बहुत सारा गिल्ट है, जो अनहैंडल्ड है, सप्रेस्ड है। जैसे अभी आपकी गिल्ट की लिस्ट को रीड करना, डोंट गेट अटैच टू इट, जस्ट रीड इट। चलो, आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम दिस गिल्ट, पर मेरे कंडीशनिंग्स बेवजह इस गिल्ट को पकड़ के रख रहे हैं। I deserve to be free. Unnecessary, this past is blocking me. I am not able to gather that strength to free myself from this guilt. But this has to release. Despite of this, I accept myself. Forgive myself. Love myself. And allow myself to be free from this. Once again, unconsciously मेरी सिस्टम बहुत सारा गिल्ट होल्ड कर रही है। इस वजह से जैसी मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, पीस मुझे महसूस होना चाहिए, उस अवस्था तक मैं पहुंच नहीं पा रही।
I am unnecessarily carrying this guilt of read your list. Okay. My every cell deserves to be free from this burden. Even though it is difficult. I allow this guilt to release completely. Short tapping. Release and change. 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 I deserve to be free from this burden. I am unnecessarily carrying this burden. I have the strength to be free from this. I have the strength to be free from this. I have the strength to be free from this. I have the strength to be free from this. I have the strength to be free from this. I have the strength to be free from this. I am free. I am free. I am free. My every cell can breathe freely. My every cell can breathe freely. I deserve this freedom. I am free. And I deserve this freedom. हाथ नीचे, 3 गहरी सांसें लेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे. Breathe in. Breathe out. Again, breathe in. Breathe out. Again, breathe in. Breathe out. Keep your eyes closed for a few seconds. Okay. Slowly open your eyes. So now you will do this for the next till we have the next session, that is in next 7 days. So for these 7 days, you will practice this guilt thing and the meditation that sir has taught you all. Okay, so these 2 things you will do for the upcoming week. Clear? So we are going to meet on next Thursday. Yes. So till then, you should be out of a lot of clutter that you are carrying inside you. Yes. So I will see you all on
next Thursday. So bye bye and good night. Good night. Bye. Bye. Good night.